بہت شکریہ. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کورٹ پاکستان کی عدالت جو بھی ہو اگر وہ ایک آرڈر پاس کر دے تو چاہے وہ پسند ہو یا نہ پسند ہو, ٹھیک ہے, قانون اور آئین یہی بتاتا ہے کہ اس کو عدالت کے احترام کے لیے, قانون کی پابندی کے لیے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور جو پارٹی اگریوڈ ہو اس کے لیے آپشن موجود ہوتے ہیں, کوئی ریویو کا آپشن ہے, کوئی اپیل کا آپشن ہے. لیکن اب ایک بندہ اگر اس کے خیال ہے کہ آپ یہ ڈائریکشن دی جائے یا کوئی ریٹ ایشو ہے, وہ یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا ایک قیاس ہو جائے گا, ایک جو ہے پھر سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. عدالتوں کا احترام یا پبلک کانفیڈنس تبھی ہوتی ہے جب اس کے آرڈر امپلیمنٹ کیے جائے. ٹھیک ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ابھی جب یہ آرڈر ہوا تھا تو اب ایک کچھ جو جرنلسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوتے ہیں, ان کے اسپوکس پرسن بنے رہتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس آرڈر کا بھی وہی اشر ہوگا. تو یہ کہ آپ عدالتوں کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, عدالتوں کی وہ لوگ تو ان کریں جو عدالت کا آرڈر پاس ہی ہو تو اس کے ساتھ ہی کہنے لگے یہ ہو سکتا ہے یہ نہ امپلیمنٹ ہو. ان کو پہلے ان پہ کنٹیمپٹ لگانی چاہیے جو یہ معاشرے کے اندر ایک ایسی افواہ سازی کر دیتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. بھائی عدالت کا جو بھی آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, چاہے آپ کو پسند ہے. سر اب یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا نا, تو اس کا بتا دیں جس طرح سے عدالت کا آرڈر تھا اب یہ اس طرح سے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, تو اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ کنٹیمپٹ کا کہا جا رہا ہے, اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم کنٹیمپٹ کی وہ کیس بھی فائل کریں گے, تو کیا یہ کنٹیمپٹ لگتی ہے حکومت کے اوپر؟ دیکھیں وہ تو جب کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو نوٹس ہوتا ہے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن, قانون کیا کہتے ہیں سر؟ ہوتا ہے ایک سمپل نوٹس ہوتا ہے. اگر ان کو نوٹس ہوتا ہے جی آگے جواب, تو یہ ان کو جو آرڈر پاس ہوا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کو جواب دینا ہوگا جی کہ میڈیکل بورڈ جو کورٹ نے آرڈر دیا ہے وہ کس طرح کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے, اس کے ممبر وہی تھے جو کورٹ نے کہا ہے, تو انہوں نے کیا اوپینین دی ہے کہ آپ نے ہاسپٹل چینج کیا ہے یا وہاں پہ نہیں لے کے گئے ہیں, تو کیا میڈیکل بورڈ نے کہا ہے یا میڈیکل بورڈ نے اگر پمز میں فرد سے کا آرگومنٹ چلے, وہ پمز بیسک چیز تو ہے کہ کسی بھی سیاسی قیدی ہو یا کوئی بھی سٹیزن ہو اس کی ہیلتھ کا اگر ایشو ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے, کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے ہو, تو اس کے جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. تو یہ دیکھیں ایک پاپولر لیڈر ہے, بالکل صحیح, پاکستان رہ چکے ہیں, جو بھی کسی پارٹی کا اگر وزیر اعظم رہ چکا ہے تو اس کی اس کی فیملی کے لیے اس کے فالوور کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب وہ جب بورڈ جو کانسٹیٹیوٹ کورٹ ڈیفینیٹلی مانگے گی کہ اگر بورڈ نے ایگزامن کیا ہے نہیں کیا ہے, یہ ساری چیز کے سامنے آئیں گی اس وقت جب یہ کوئی اپلیکیشن دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں باجوہ صاحب سے جانوں پھر میں احمد عوض صاحب کا بھی پوائنٹ آگے لوں گی. باجوہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں آ گئے تھے, تو سیکیورٹی تھریٹ تھا. سیکیورٹی تھریٹ کیا تھا سر؟ جب آپ لوگ اکٹھے گاڑیاں وہاں سے نکلی ہیں تو آدھے لوگ پہنچ گئے ہیں پمز میں, آدھے پہنچ گئے ہیں شفا میں. میرے پاس عدالت کا آرڈر موجود ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ عمران کی ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو ان تک رسائی دی جائے. ڈاکٹر سلطان کے ساتھ ساتھ ایک ماہر امراض چشم, ایک جنرل فزیشین اور ایک ماہر امراض قلب پہ مشتمل میڈیکل بورڈ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ بھی اس نئے میڈیکل بورڈ میں کا حصہ ہوں گی. تو آپ لوگ تو چلے گئے پیمز ہاسپٹل میں, تو آپ لوگوں کا میں معذرت کے ساتھ بالکل نہیں مان سکتی کہ حکومت ہو, موجودہ وقت کی حکومت ہو, اور اس سے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں, اتنے ہی ہوں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے, وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کچھ یا ہزاروں کی تعداد میں چلے مان لیں, یا کچھ لوگ تھے وہ وہاں پہ ہینڈل نہیں ہو سکے اور سیکیورٹی کا ایشو بنا دیا گیا. ایٹ لیسٹ یہ چیز ماننے والی نہیں آتی ہے, سمجھ سے باہر ہے. جب ڈاکٹر فیصل وہاں پہ جا سکتے ہیں تو عمران خان پہ جا سکتے ہیں. سر ٹنٹڈ گلاس والی گاڑی ہوتی ہے, نظر ہی نہیں آتا اندر کون بیٹھا ہوا ہے. جب یہ تو بات نہیں کہہ سکتے کہ جو ٹنٹڈ گلاس والی گاڑی ہوتی ہے اس میں اندر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آ سکتا, لیکن جب کوئی وی آئی پی جو ہے یا وی وی آئی پی کی موومنٹ ہوتی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ پروٹوکول بھی اور باقاعدہ سیکورٹی بھی ہوتی ہے. اور جب کوئی کاروائی آئے گا اس طرح کے پیشنٹ کو لے کے یا اس طرح کے وی وی آئی پی کو, تو پھر دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ اسپیشل کاروائی آ رہا ہے. تو سر پھر آپ کی تیاریاں کیا تھی سیکورٹی کو لے کے, اگر آپ کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ روٹ چینج کر گئے؟ یہ ٹریک ریکارڈ ہے, یہ ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا. وہ کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے بہیو نہیں کیا کہ وہ
सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। सर अदालत के ऑर्डर्स को तो डिसू को पहले भी किया गया ना, आप बाजवा साहब कैसी बात कर रहे हैं? या नो नहीं हो, ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोग, और अब ये स्पेशली नहीं, पाकिस्तान ट्रैक रिकॉर्ड आप तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं या PMLN का? तारीफ किसकी कर रहे हैं कि कभी अदालत के ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया? ये किसकी तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं देखें, हम तो हमेशा रास्तों के हुक्म की पाबंदी कर। सर अदालतें आपको इतने अरसे से कह रही हैं फैमिली की मुलाकात करवाएं, PTI वाले लोग हाथ में अदालती ऑर्डर्स लेके आते हैं और आप लोग मुलाकातें नहीं करवाते, तो ये आप लोग ये अदालती अहकाम के अगेंस्ट ही जाते हैं ना? उसका भी मैंने कहा था कि ये हमें कहते हैं कि ये बड़े बेइख्तियार गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है, हम इनसे बात करना नहीं चाहते, हम इनको मानते ही नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, फिर अगर जो आप जिनको आप एम्पावर्ड समझते हैं आप उनसे इजाजत लेके। सर ये आपकी लॉजिक में नहीं समझ, नहीं बाजवा साहब, ये आपकी लॉजिक एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। एम्पावर्ड हैं नहीं है, अपोजिशन का काम है सर अपोजिशन करना। आप लोग तो पावर में हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी आए, जो अपोजिशन कहती है आपको तो मुलाकातें करवानी चाहिए। कैटेगोरिकली मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, देखिए इससे पहले भी जब भी किसी की भी शख्स की वहाँ मुलाकात हुई बानी PTI से, इमरान अहमद खान न्याजी से, कहते हैं नाम नहीं लेते, मैं नाम भी ले देता हूँ, जब भी उनसे मुलाकात हुई उसी वक्त जब वो लोग बाहर आए और मीडिया कांफ्रेंस में बैठ के उन्होंने मुख्तलिफ चीजों की बातें की और आधार की फैलाने की कोशिश की। और इसीलिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट थी या इंटरिम ऑर्डर था, उसमें उन्होंने कहा कि आप कहीं भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जो पॉलिटिकल हो। सर नहीं चले बाजवा साहब, आपको पॉइंट आ गया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहरहाल तरीके से आपने कोई नहीं दी थी। नहीं बाजवा साहब चले, मैं अवैध साहब से जान लेती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो जब नौरीन साहबा मिलके आई हैं तो उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने तो मीडिया इंटरेक्शन से माजरत कर ली, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो कोई नहीं आ रही थी उनकी तरफ से। बहरहाल चले, मैं अवैध साहब से जान लेती हूँ। अवैध साहब, बाजवा साहब कह रहे हैं कि अदालत ने कहा था कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी और आप लोगों ने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए। जहां तक हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे थे या आपकी अपीलें सुन रहे थे जो आप लोगों की तरफ से आ रही थी, तो कहा जा रहा था कि बंदे इकट्ठे ना हो। फिर लोग अगर इकट्ठे हुए तो क्या आप लोगों ने उनको मतलब कोई पार्टी के लोग थे वहां पे, उनको आप लोगों ने कोई मुंतशिर करने की या उनको वहां से हटाने की कोशिश की, या पार्टी खुद इस कोशिश में थी कि खान साहब को वहां पे शिफ्ट करवा दिया जाए? मतलब लोग जो इकट्ठे हुए वो कैसे हो गए सर? देखिए ये तो एक कंकॉक्टेड स्टोरी है। वहां पे जो अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वहां पर कोई गैदरिंग नहीं थी, और आपको मालूम है कि जब इतनी हिफाजत में और उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ वहां से जिन्होंने रास्ता साफ करके लेके जाना था वहां हॉस्पिटल तक, वो तो पहले रास्ता साफ करके फिर आगे चलते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वहां से कोई लोग इकट्ठे होकर उसको ब्लॉकेट करते, ना किया उन्होंने ब्लॉकेट, क्योंकि ये तो जब ये ऑर्डर पास हो चुका था तो ये तो हर वर्कर और हर लीडर इसको अप्रिशिएट कर रहा था, और वो दे वर कमिटेड कि कोई ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। सही। और दूसरी बात ये है कि ये तो पहले ही लिख चुके हैं। असल में देखिए ना, इन्होंने जो लिख के दरखास्त दी थी नजरसानी की, उसके ऊपर अदालत के फैसले से पहले खुद ही अमल कर लिया। इन्होंने दरखास्त ये लिख के दी थी कि जी ये प्राइवेट हॉस्पिटल को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता था, इनको चाहिए था कि किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के मतलब ये क्या ऑर्डर किया जाता, और उसके बाद वही किया उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए और में ले गए, जबकि ये पेशेंट जो है ये आई, आपने पढ़ी होगी वो जो उसकी रेलेवेंट पैरा है उस ऑर्डर का जी, उसमें लिखा हुआ है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इसलिए भेज रहे हैं कि आई के बेहतरीन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स वहां पर जी, और वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इनके मतलब, क्योंकि इनकी एक आंख जो है वो हमेशा है खराब हो गई, जाया हो गई है। सही, ये वजह थी, दैट वाज द रीजन। और तो उन्होंने किसी जिस्म के किसी बाकी हिस्से के मतलब तो बात ही नहीं की हुई। दुरुस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब आप लोगों का आगे क्या प्लान है?
आप लोग इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं कंटेम्प्ट के हवाले से, क्या प्लान किया है आप लोगों ने? फिर आप लोगों का 27 सितंबर को एहतजाज भी है, फिर वो भी आज मैं सीएम साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि पहले से ज्यादा जो है सख्ती के साथ या पहले से ज्यादा जो है हम उस एहतजाज में तेजी लेके आएंगे। देखिए, मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद महंगाई, बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है आपने सुन ली होगा, यूएनओ की रिपोर्ट, वो 50% से तजावज कर गई, 52% तक चली गई है। तो जिस मुल्क में 13 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही हो, तो वो हॉरिबल लाइफ है। अभी वक्त नहीं आपके पास, वरना मैं आपको डिफाइन करूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लाइफ होती है, उसको वो लाइफ होती क्या है। बिल्कुल सही, जानवरों से बदतर लाइफ है वो, दुरुस्त। और कोई कभी किसी ने उनका मतलब सोचा भी नहीं है। तो ऐसे हालात में आप जो मौलाना फजलुर रहमान भी जो है, बहुत सारे इश्यूज हैं उनके सामने भी, पीटीआई के बहुत सारे इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, उसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अदलिया की आजादी सलब हो चुकी है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप इस जो ये इनकी लॉन्ग मार्च होगी, ये प्रोटेस्ट होगा, इसके अंदर तो सिविल सोसाइटी भी आ रही है, इसके अंदर मुख्तलिफ मकतब फिक्र से लोग भी आ रहे हैं, और इसके अंदर वकला की भी बहुत बड़ी तादाद में शामिल हो रही है। इसलिए एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। इनका आप एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बाजवा साहब, आप लोगों को अब देखना चाहिए कि मामला काफी हद तक सेटल हो रहे थे, लेकिन चलें आप लोगों ने फिर अपनी सोच ही लगाई है। मैं जदून साहब से जान लूं। जदून, मैं बाजवा साहब आपकी तरफ आती हूँ, मैं पहले जदून साहब से उनका पॉइंट ले लूं, वक्त की किल्लत है। जदून साहब, ये जो दोबारा से कह दिया जाता है कि हमें क्लैरिफिकेशन दे दें जी, हमें क्लैरिटी नहीं है आपकी इस तरह के जो आपकी जजमेंट आई है उसकी, पहले तो ये बता दें कि क्लैरिटी किस चीज़ पे नहीं होती है जो कहा मांगी जाती है क्लैरिटी, पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो प्रेसिडेंट सेट हो गई, तो क्या इस चीज़ को पीटीआई जवाब बना सकती है कि पिछले 8-10 महीने में जो खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई गई तो वो भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गई? मुलाकातें तो करवानी थी ना फैमिली की, तो वो भी तो एक प्रेसिडेंट सेट होगी। क्या ग्राउंड्स क्या है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तहरीक इंसाफ के पास अब कानूनी रास्ते क्या हैं? तहरीक इंसाफ का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, वो अपनी जो भी गुजारिश आते हैं या रिक्वेस्ट है, ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, मुलाकातें नहीं हो रही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड भी मांगा है केसेस का मेरे ख्याल में, तो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो जाके कोर्ट में कह सकते हैं जी कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं। अदालतें इसीलिए अदालतों को चाहिए कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं इन लेटर एंड स्पिरिट। अगर अदालतें यहाँ पे नरमी बरतेंगी या वो इग्नोर करेंगी तो फिर अदालतों पे लोगों का पहले भी एतमाद बहुत हद तक खत्म हो चुका है और फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ना, मैंने जिस तरह पहले कहा है कि ऑर्डर जो भी आए किसी भी पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट हो, कल को लेकिन आज पीटीआई या कल कोई दूसरी पार्टी वहां पे खड़ी होगी, वो 2018 में PMLN खड़े थे, ये तो फिर देखे ना, एक की बारी है फिर दूसरे की बारी है। लेकिन अदालतों को जो है वो मेरिट पे काम करने देना चाहिए और जो भी ऑर्डर हो वो इम्प्लीमेंट करे। अब एक बंदे के पास अदालत अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगी? क्या वो पहले क्लैरिफिकेशन देगी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कहेगी कि मेरे ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट किया जाए? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नहीं बाजवा साहब, आती हूँ मैं जदून साहब से टेक्निकल पूछ लूं क्वेश्चन। जी जो भी पार्टी देखे ना, आप पीटीआई वाले अगर जाके दरखास्त देते हैं कि ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से जवाब मांगी, शफा हॉस्पिटल में लाया तो वहाँ पे मेडिकल जो बोर्ड था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसने क्या ओपिनियन दी है, बोर्ड ने पेम्स में चेक किया जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया या नहीं किया है। तो ये सारी चीजें जब वो जवाब देंगे गवर्नमेंट, वो तो इन राइटिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट, तो उस वक्त पता चलेगा। अभी तो प्रिजम्पशन ही है ना कि क्यों लाया, सिक्योरिटी की वजह थी, नहीं वजह थी भाई, सिक्योरिटी की तो हर वक्त सूरत हाल इस तरह की होती है। जिस वक्त आप किसी भी इस तरह जेल के अंदर से लीडर को लाएंगे तो सिक्योरिटी की सिचुएशन होगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको उसकी जो फंडामेंटल राइट है वो हेल्थ का इशू है वो उसको डिनाई कर सके सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट पे। सिक्योरिटी को स्टेट की जिम्मेदारी है, एक आम सिटीजन को भी सिक्योरिटी दे दो। सिक्योरिटी का अगर इशू है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, या आप शफा के जो डॉक्टर है वो बेंच में लेके आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हेल्थ का इशू है, इसको रिजॉल्व चाहिए और ये हो सकता है, इसमें कोई टेक्निकलिटी बिल्कुल सही है, हेल्थ का इशू है और रिजॉल्व किया जा सकता है। बहरहाल
پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈسکشن میں ابھی بہت کچھ تھا کہ جو پوائنٹس تھے سامنے رکھنے تھے. بہرحال بہت شکریہ جہانگیر خان جدون صاحب, احمد اویس صاحب, آصف باجوہ صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.